for the case of helium, okay, two electrons revolving around a nucleus who's actually carrying the two proton, okay, right? We just write these are actually consist of two terms. One is a heterogenic Hamiltonian, that is for one electron, that is for second electron. That third term is arises the interaction between the electrons, and still we cannot solve it easily, but we can do it if we neglect the last term, the interaction between them. Okay? Right, and we tried to solve the Schrodinger wave equation for such Hamiltonian, just neglecting the last interaction term. Okay, right. If there will be no interaction, then the combined wave function of the system can be written as psi1 and psi2. Psi1 is a wave function of one particle, and psi2 is a wave function of second particle. They are, but they behave like a distinguishable particle if we neglect the interaction between them. Okay, right? And we just write the Schrodinger wave equation psi, okay, h psi, okay, for the electron, and h psi for second electron, that will be equal to E psi1 and psi2. Okay? And we just solved it last time. Okay. Okay, that will be the total energy of your system, energy of the one electron and the energy of the second electron. Okay, we just write two equations. Okay, this is for one electron, this is for second electron. We already solved this equation. These are the similar equations as we solved in hydrogen case. Okay, because both electrons, it is independent. Okay, there will be no interaction between them. और इनका solution इस Schrodinger wave equation को जिसमें हमने radial और angular part solve किया hydrogen के case में, right? So we get the real, okay, wave function of hydrogen atom. Then the wave function, okay, state of that system is can be represented as psi n l m. The R1 state of that electron can be written as psi n prime l prime, okay, m prime r2. That will be the combined wave function. Clear है last lecture? सर ये पैरा हीलियम और अर्थो हीलियम का क्या मतलब है? Okay, okay, मैं बता दूं. Okay, right. Okay, Zishan, हमने बात की ground state of Hamilton helium. Ground state is represented by this one. This coordinate is R1 and R2 special part. That will be equal to ground state of one electron. That will be 1, 0, 0. उसमें n की value 1 हो, l की value 0 और m की value भी 0. That is one electron. And ground state of second electron. इसको prime कर लें for the case of second electron. Right? ये clear है? Yes sir. जी निशान. Yes sir, ये clear है. ये स्पेशल पार्ट है, दैट विल बी ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम. अब ये ग्राउंड स्टेट किसके इक्वल है, ये आप ऊपर लिख चुके हैं. ग्राउंड स्टेट ये इसके इक्वल है, राइट? ये क्लियर है? Yes sir, clear. Okay. ये स्पेशल पार्ट ऑफ ग्राउंड स्टेट, इफ आई अप्लाई parity operator, okay, yeah, it's mean that if I change the, ये न्यूक्लियस के अंदर ये इलेक्ट्रॉन और ये सेकंड इलेक्ट्रॉन है हीलियम का. ये इलेक्ट्रॉन R1 इसके कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट है, ये R2 से रिप्रेजेंट है इन स्पेस. फॉर एग्जांपल, इफ आई चेंज बोथ द इलेक्ट्रॉन्स,
if I change the position of both electrons, okay, if I, because इनके wave functions overlap कर रहे हैं, for example अगर मैं इनकी position change करता हूँ, if I change the right wave function of change the coordinates of both electrons, what will be happen? In ground state के wave functions अगर मैं coordinate change करता हूँ तो I will get this one. सेकेंड इलेक्ट्रॉन के कोऑर्डिनेट R2 हो जाएंगे और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के कोऑर्डिनेट R1. ओके, आपने अगर उसको चेंज कर ले बिकॉज वो फर्मियंस हैं, उनके वेव फंक्शंस ओवरलैप कर रहे हैं, तो हमें नहीं पता कि ये पहला इलेक्ट्रॉन या दूसरा इलेक्ट्रॉन, राइट. अगर उनकी पोजीशंस हम चेंज करते हैं तो हमें इसलिए नहीं पता कि बिकॉज दे आर फर्मियंस. ओके, because they are quantum particle, not even fermions. It can also be happen in boson space, right? Eunice, clear? यस सर. अगर यहाँ प्लस साइन आता है इससे क्या मतलब है? आपका जो स्पेशल पार्ट वेव फंक्शन वो सिमेट्रिक है या एंटी सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक है. सिमेट्रिक है, राइट. इन ग्राउंड स्टेट में आपके पास ये जो, अगर मैं इनकी पोजीशन बदलता हूं, इट्स मीन दैट अगर मैं इसके ऊपर पैरिटी ऑपरेटर अप्लाई करता हूं तो आई विल गेट द सेम स्टेट विद प्लस साइन. ठीक, पैरिटी ऑपरेटर है ना, अगर मैं इसके ऊपर पैरिटी ऑपरेटर अप्लाई करता हूं तो आई विल गेट द सेम स्टेट विद +1, यानी +1 उसकी आइगन वैल्यू 1 होगी. प्लस के साथ आता है, माइनस के साथ नहीं आता. ग्राउंड स्टेट के ऊपर अगर मैं पैरिटी कह रहा हूँ, एक्सचेंज ऑपरेटर अप्लाई करता हूँ ग्राउंड स्टेट के ऊपर, तो आई विल गेट द सेम स्टेट. ओके, एक्सचेंज ऑपरेटर से मुराद है आपने कोऑर्डिनेट्स चेंज कर दिए, ठीक है, राइट, या इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज कर दी तो आई विल गेट द सेम स्टेट. स्टेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, जो स्टेट पहले थी एक्सचेंज ऑपरेटर अप्लाई करने के बाद में भी वही है, उसकी आइगन वैल्यू +1 है, -1 नहीं, राइट. जी, यहां तक क्लियर है अभी? यस सर. जी सर, क्लियर है. क्लियर है. अब ये इसकी ग्राउंड स्टेट का स्पेशल पार्ट जो है, हीलियम की ग्राउंड स्टेट का स्पेशल पार्ट जो है वो सिमेट्रिक है. उसके ऊपर पैरिटी ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, आपके पास वही स्टेट आती है प्लस साइन के साथ, तो सिमेट्रिक है. ओवरऑल वेव फंक्शन फर्मियंस का क्या होता है? ओवरऑल वेव फंक्शन ऑफ फर्मियंस का क्या होता है फर्मियंस सिस्टम का? सर वो सिमेट्रिक होता है. ओवरऑल वेव फंक्शन एंटी सिमेट्रिक होता है फर्मियंस का. फर्मियंस का वेव फंक्शन एंटी सिमेट्रिक होता है. अगर इसका स्पेशल पार्ट सिमेट्रिक है तो इसका स्पिन पार्ट क्या होगा? एंटी सिमेट्रिक होगा, ठीक है ना. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वेव फंक्शन शुड बी एंटी सिमेट्रिक. ठीक है ना, स्पेशल पार्ट मल्टीप्लाई बाय स्पिन पार्ट, तो टोटल वेव फंक्शन शुड बी एंटी सिमेट्रिक. अगर ये सिमेट्रिक है तो इट शुड बी, स्पिन पार्ट शुड बी एंटी सिमेट्रिक. ओके, तो एंटी सिमेट्रिक पार्ट जो है स्पिन अगर दो पार्टिकल्स हैं, सकती है. अगर ये 1 है तो ms की वैल्यू 0 हो सकती है. अगर ये 1 है तो ms की वैल्यू 1 हो सकती है. दैट इज ट्रिपलेट स्टेट. दैट इज एक्चुअली सिमेट्रिक ट्रिपलेट स्टेट. अगर इसके ऊपर मैं ये एक्सचेंज ऑपरेटर अप्लाई करता हूं तो ये ट्रिपलेट स्टेट क्या है? सिमेट्रिक स्टेट्स हैं. अगर s 0 है तो एक स्टेट बनेगी 0,
और ms की वैल्यू भी 0, दैट इज सिंगलेट स्टेट। तो सिंगलेट स्टेट आपको पता है, इट कैन बी रिटन एज 1/√2 अप डाउन माइनस डाउन अप, और ये भी मैंने लिखी हुई थी, अप हो सकती है जब 1 होगी, 1 - 1 होगी तो डाउन हो सकती है, और जो थर्ड स्टेट है 1/√2 अप डाउन विद प्लस साइन, डाउन अप। ठीक है, ये स्टेट रिप्रेजेंट कर रही है 1 को, ये स्टेट रिप्रेजेंट कर रही है 1 को, ये स्टेट रिप्रेजेंट कर रही है डाउन 1 - 1, और 0 स्टेट रिप्रेजेंट कर रही है सिंगलेट स्टेट, और ये ट्रिपलेट स्टेट है। ये पढ़ चुके हैं ना हम। यस सर। ठीक है, तो सिंगलेट स्टेट है वो एंटी सिमेट्रिक होती है और ट्रिपलेट स्टेट सिमेट्रिक होती है। तो अगर आपका स्पेशल पार्ट आपके अब आगे आ जाए, तो ग्राउंड स्टेट हमें पता है, अगर हम ग्राउंड स्टेट की बात करें, ग्राउंड स्टेट में हमें पता है स्पेशल पार्ट जो है वो सिमेट्रिक होता है, तो स्पिन पार्ट शुड बी एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक से मुराद क्या, वो सिंगलेट स्टेट होगी। ठीक है, इसको हम पैराहीलियम बोलते हैं। अगर स्पेशल पार्ट एंटी सिमेट्रिक, फॉर एग्जांपल कोई एक्साइटेड स्टेट है, वो एंटी सिमेट्रिक हो सकता है स्पेशल पार्ट एक्साइटेड स्टेट का, तो उसका स्पिन पार्ट शुड बी सिमेट्रिक, जो कि ट्रिपलेट स्टेट होगी, दैट इज नोन एज ऑर्थोहीलियम। तो ग्राउंड स्टेट हमेशा पैराहीलियम होगी, क्योंकि उसका स्पेशल पार्ट तो हमें पता सिमेट्रिक होता है ग्राउंड स्टेट का, तो स्पिन पार्ट एंटी सिमेट्रिक होना जरूरी है, क्योंकि ओवरऑल आंसर शुड बी एंटी सिमेट्रिक। तो ग्राउंड स्टेट इज ऑलवेज पैराहीलियम। एक्साइटेड स्टेट ऑर्थोहीलियम हो सकती है, एक्साइटेड स्टेट पैरा भी हो सकती है और ऑर्थो भी हो सकती है। दिस डिपेंड अपॉन एक्साइटेड स्टेट का, अगर स्पेशल पार्ट सिमेट्रिक है तो स्पिन पार्ट शुड बी एंटी सिमेट्रिक। एक्साइटेड स्टेट का अगर स्पेशल पार्ट एंटी सिमेट्रिक है तो स्पिन पार्ट शुड बी सिमेट्रिक, बट ग्राउंड स्टेट इज ऑलवेज पैराहीलियम। जी क्लियर हो गया, ठीक है। ओके गुड। अब ये था लास्ट लेक्चर, अब हम सॉलिड पढ़ेंगे। सॉलिड में दो मॉडल्स हैं, वो बड़ी इजीली आप, आई थिंक ऑलरेडी अगर आपने वो सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ी है, इट्स ओके, इट्स एक्चुअली रिलेटेड टू सॉलिड स्टेट फिजिक्स आर्टिकल। ओके, तो ग्राउंड स्टेट में हम क्या मोस्टली हम क्या अज्यूम करते हैं, ये पॉजिटिव आयन कोर्स हैं, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स वो क्या होते हैं सॉलिड के अंदर, फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ मेटल्स, in the case of metal, because free electrons work good for the case of metal, your outermost electrons it will be considered as free, right? जी, ये क्लियर है, ये आप इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे या सॉलिड स्टेट फिजिक्स में पढ़ चुके होंगे कि इन मेटल्स के अंदर सॉलिड को हम सॉल्व करने की ये एक पूरी सॉलिड स्टेट फिजिक्स है कि हम पोटेंशियल इंक्लूड करते हैं, फिर इंटरेक्शन इंक्लूड करते हैं, सिस्टम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे सिंपलेस्ट मॉडल है, टोटल मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री इन सॉलिड, दे कैन मूव एवरीवेयर। ओके, उनके ऊपर कोई फोर्स एग्जिस्ट नहीं हो रही, कोई पोटेंशियल, ये हमने मॉडल एज्यूम किया होगा, राइट? वो बट इसके अंदर वो फ्रीली मूव कर सकते हैं एनीवेयर, ओके, बट इस दीवार को फलांग नहीं सकते। दे आर एक्चुअली इन्फिनिट स्केल पोटेंशियल, वो इन्फिनिट पोटेंशियल में विद इन दैट पोटेंशियल दे आर फ्री, बट वो दीवारों से बाहर नहीं आ सकते। ये डायग्राम क्लियर है? यस सर क्लियर है। तो यहाँ पे दो थ्योरम्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ओके, मूव अराउंड थ्रू मटेरियल के अंदर वो मूव कर सकते हैं। वी विल सी टू मॉडल्स, ओके, द इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी, फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ बॉक्स, यानी उस मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, और दूसरा ब्लॉक थ्योरी यानी पीरियोडिक थ्योरी, यानी वो जो पॉजिटिव आयन कोर्स मौजूद हैं वो
वो periodic potential बनाते हैं, तो असल में इलेक्ट्रॉन मूव विद इन दैट periodic potential। तो पहले हम फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल पढ़ेंगे, फिर हम ब्लॉक थ्योरम पढ़ेंगे, यानी जो आयन कोर्स का पोटेंशियल उसे भी इंक्लूड कर लेंगे। Both are the first halting steps towards the quantum theory। okay, right। तो फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल को हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल में क्या है? सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज एक्चुअली, अगर हमारे पास इस तरह का कोई पीस है, स्क्वायर फॉर्म में पीस है, फॉर एग्जांपल, ओके, ये सपोज एक्स एक्सिस है, ये सपोज वाई एक्सिस है, ये सपोज जी एक्सिस है, ये कोई मेटालिक बॉक्स है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स के हैं। जी जी जी। सर जी, वो मैं ये पूछ रहा था, मेरी ना लाइट जाने वाली है यहाँ पे, तुम क्विज तो नहीं है होता आज क्विज होगा बेटा, क्विज होगा आज। लास्ट पे? जी जी, लास्ट क्लास में होगा, का लास्ट 10 मिनट्स में, या फिर डेफिनेटली आई विल सेंड यू थ्रू ईमेल। ओके, तो आप थ्रू ईमेल में सेंड कर दूंगा, तो यू हैव टू सॉल्व विद इन 10 मिनट्स एंड जस्ट सेंड मी द आंसर्स। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री विद इन दैट सॉलिड मटेरियल। इस सॉलिड मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, दे कैन मूव फ्रीली। ओके, विद इन दैट लेंथ, ये लेंथ ये आपके पास एक्स यहाँ से 0 और मैक्सिमम एल एक्स 0, एल वाई मैक्सिमम 0, एल जी मैक्सिमम। ओके, these are electrons are free within that solid material, but they cannot escape from the walls। okay, जिसके बाद potential finite है, तो potential can be written as 0 if electron is within the box। okay, and potential is infinite otherwise। तो वो उसकी वॉल से वो बाहर नहीं आ सकता, तो इसके बाद उसके लिए पोटेंशियल इन्फिनिट है। दैट इज एक्चुअली कन्फाइंड विद इन दैट बॉक्स। ओके, उस मटेरियल के अंदर, उस क्यूब के अंदर वो कन्फाइंड है। राइट, क्लियर? Clear, sir. Okay. If they are non-interacting particle, then I can write a Schrodinger wave equation. हमें जरी बात है, total Schrodinger wave equation can be written as x part, y part, and z part. Total wave function of that electron. Okay, so that will be the x part. Schrodinger wave equation for the x part. We just solve the Schrodinger wave equation for the y part. Schrodinger wave equation for the z part. Okay? You just write it. The total energy will be equal to of the electron can be written as uska x component। okay, if electron move in a box, so then we can separate it into x component, y component, and z component। okay, that will be the x component, y component, and z component। total energy of your system can be written as ex ey plus ez। और e हमें पता है, ex can be written as minus h cut square over 2m kx। Similarly, ey can be written as minus h cut square, okay, h cut square over 2m kx। okay, और Ez is equal to h cut square 2m over kz। तो k can be written in terms of energy। राइट, जो हमने x कंपोनेंट में लिखा है माइनस h कट स्क्वायर ओवर 2m। ओके, राइट,
ओके, दैट कैन बी अ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, एक्स हो या साई हो या वाई हो, वी ऑलरेडी सॉल्व दिस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इज अ सिमिलर केस, दैट इज वन डायमेंशन, इलेक्ट्रॉन इज कन्फाइंड अलोंग एक्स एक्सिस। ये हम आ चुके हैं इन्फिनिट स्क्वायर वेल में। ये इससे मुराद इलेक्ट्रॉन इज कन्फाइंड अलोंग वाई एक्सिस, इलेक्ट्रॉन इज कन्फाइंड अलोंग जी एक्सिस। ओके, राइट। तो इनका सॉल्यूशन हमें पता ऑलरेडी, इट विल बी इक्वल टू दिस वन, x is equal to ax sin kx x plus bx is equal to cos kx x। for y केस भी सिमिलर, z केस भी सिमिलर। हमें पता है कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन जो है at x is equal to 0, okay, y is equal to 0, z is equal to 0, okay, right। यहाँ पे आपके पास बाउंड्री कंडीशंस हैं, दैट विल बी द बाउंड्री कंडीशंस। एक वॉल के ऊपर इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन क्या है, 0 है, राइट। तो इट्स मीन वेव फंक्शन 0 है, इट शुड बी इक्वल टू, क्योंकि कॉस अगर ये 0 है तो ये कॉस का आंसर 1 आएगा। तो दिस कंपोनेंट शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि उसके बाद वेव फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। पता नहीं आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं इस बात को कि नहीं। ओके, ये इन्फिनिट स्केल है, राइट। इस दीवार के ऊपर ये जो x आपके पास 0 है, Lx है, ये आपके पास 0 Ly है, ये 0 Lz है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसकी इस दीवार पे या इस दीवार के पीछे क्या है, आपके पास वेव फंक्शन 0 है, यहाँ पे x 0 है। इस दीवार पे, ये जो दीवार मैं शेड कर रहा हूँ, यहाँ पे y 0 है, राइट। ये जो नीचे वाली दीवार है, यहाँ पे z 0 है। तो इसके बाद यानी बाउंड्री कंडीशंस के मुताबिक इसके बाद वेव फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, बिकॉज इट इज इन्फिनिट स्क्वायर वेव। तो इन वैल्यूज के ऊपर x 0 के ऊपर, y 0 के ऊपर, z 0 के ऊपर wave function should be equal to 0। wave function का x पार्ट, y पार्ट और z पार्ट should be equal to 0। तो अगर x y z 0 है तो cos आंसर्स देगा 1, इट्स मीन दैट इनको 0, ठीक है, क्योंकि आपके पास वेव फंक्शन यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। तो दीज आर इक्वल टू 0। Lx Ly और Lz यानी उसके अपोजिट दीवार के ऊपर भी वेव फंक्शन उसके पास एग्जिस्ट नहीं करता, इट शुड बी आल्सो इक्वल टू 0, राइट। अगर ये 0 है, x is equal to xl, for example x is equal to lx, फर्स्ट इक्वेशन, ये तो ऑलरेडी टर्म 0 हो चुकी थी, राइट। तो 0 ax sin kx lx, इसका आंसर 0 है, राइट। इससे क्या मुराद है, ये आंसर कब 0 हो सकता है, इससे मुराद है कि साइन की जो वैल्यू है वो kx lx की वैल्यू 0 हो। ये आंसर कब 0 होगा, 0 पाए हो, 2 पाए हो, देन यू विल गेट 0 आंसर, ओके। तो फ्रॉम दैट बाउंड्री कंडीशन kx lx इज इक्वल टू nx पाए, यानी 0, 2 पाए, 3 पाए, 4 पाए, इसके ऊपर वैल्यूज आपके वेव फंक्शन की 0 होगी। सिमिलरली फॉर द केस ऑफ y, सिमिलरली फॉर द केस ऑफ z, ओके। तो अगर मैं k की वैल्यू देखूं तो k की वैल्यू nx ny एंड lz आर जस्ट इंटीजर्स, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई एंड अप टू सो ऑन। यहां मैं अगर kx की वैल्यू देखूं, वैल्यू ऑफ kx यानी वेव वेक्टर, दैट विल बी इक्वल टू nx पाई ओवर l। n are integer numbers, then k values are quantized, kx values are quantized, ky values are quantized, kz values are quantized, okay? जी, यहां तक क्लियर है स्टूडेंट? कैन यू हेयर मी स्टूडेंट? समझ आ रही भी? यस सर, आ रही है, बिल्कुल समझ आ रही है। जी सर, आ रही है। ओके, ये तो इजी है।
हाँ, ये सॉलिड का केस डेफिनेटली ये इजी है और ओके। अब हमने टोटल वेव फंक्शन लिखना है। टोटल वेव फंक्शन हमें पता है एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट एंड जी कंपोनेंट। ओके, तो एक्स कंपोनेंट हमें पता है कि एक्स का वेव फंक्शन हमने लिखा एक्स, एनी जनरलाइज्ड वैल्यू ऑफ एक्स कैन बी रिटन एज ए एक्स, राइट, साइन के एक्स की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की। के एक्स की वैल्यू क्या है अपने पता, एन एक्स पाई ओवर एल एक्स एक्स, दैट विल बी द एक्स पार्ट, ओके, ऑफ योर वेव फंक्शन। ये आपके पास आ गया। सिमिलरली वाई पार्ट आ जाएगा, सिमिलरली जी पार्ट आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें, साइन एन एक्स पाई एल एक्स एक्स आ रहा है, साइन एन पाई वाई एल वाई वाई आ रहा है, साइन एन जी पाई एल जी पाई आर। इसमें ए एक्स बी एक्स एंड जी एक्स आएगा। उसको अगर मैं नॉर्मलाइज कर लूँ अपने वेव फंक्शंस को, दैट इज नॉर्मलाइज कांस्टेंट, स्क्वायर रूट ऑफ पाई एल एक्स एल वाई एंड एल जी। ओके, ये नॉर्मलाइज कांस्टेंट, आई होप यू कैन फाइंड आउट। ये आपका टोटल वेव फंक्शन आ गया। ओके, इसकी एनर्जी हमें पता है ई एक्स प्लस, हमें टोटल एनर्जी हमने सिस्टम की लिखी थी, ई इज इक्वल टू ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जी। एनर्जी को मैं लिख सकता हूँ माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m, एच कट स्क्वायर ओवर 2m के एक्स ओके, के एक्स स्क्वायर, सॉरी के एक्स मैंने लिखा, के एक्स मेरा इसके इक्वल है, या कहेंगे के एक्स की वैल्यू ऊपर दी हुई है दिस वन। यहाँ से के एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, यू विल गेट दिस टर्म। के की वैल्यू पुट कर दो, यू विल गेट दिस टर्म विद मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस नंबर। जी की वैल्यू पुट कर दो, दैट विल बी द एनर्जी ऑफ योर इलेक्ट्रॉन। ये भी क्लियर है? राइट, ओके, अभी हमने बात की के एक्स की वैल्यू ये हो सकती है पाई एल ओवर एक्स, 2 पाई ओवर एल एक्स ओवर 3 पाई ओवर एल एक्स एंड अप टू सोन। के वाई की वैल्यू ये हो सकती है, के जी की वैल्यू ये होगी। इट्स मीन दैट द वैल्यूज ऑफ के एक्स, के वाई एंड के जी आर द क्वांटाइज्ड। ओके, वो सारी की सारी वैल्यूज नहीं, पाई ओवर एल और 2 पाई ओवर एल के दरमियान वाली वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। ओके, के वैल्यू वो एग्जिस्ट नहीं करता। अगर वो के वैल्यू वो नहीं है तो एनर्जी की वैल्यू वो भी अलाउड नहीं है। इट्स मीन दैट के वैल्यूज आर क्वांटाइज्ड, एनर्जी वैल्यूज आर आल्सो क्वांटाइज्ड। तो यार सेमीकंडक्टर फिजिक्स में भी हम ये डेंसिटी ऑफ स्टेट्स के उस वक्त भी हम ये एनर्जी कैलकुलेट कर चुके हैं, राइट। तो के एक्स, के वाई एंड के जी कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म। ओके, पाई स्क्वायर एल एक्स एल वाई एंड एल जी, एल एक्स एंड एल वाई एंड एल जी इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। ओके, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, जिस क्यूब में इलेक्ट्रॉन आपका बंद है, राइट। ये एल एक्स है, ये एल वाई है और ये एल जी लेंथ है। दैट इज एक्चुअली द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, अगर आप तीनों लेंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, यहां तक क्लियर। आगे थोड़ी सी चीज अंडरस्टैंड करने वाली है, उसको आपने देखना। सपोज सैंपल कंटेन्स n नंबर ऑफ एटम्स, राइट। आपके पास n नंबर ऑफ एटम्स उस बॉक्स के अंदर, ईच एटम कंट्रीब्यूट q फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन, अगर आपके पास हर एटम एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो आपके पास n फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर एक एटम फॉर एग्जांपल 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो आपके पास 2n इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फॉर जनरलाइज केस Q विल बी 1, 2 और 3। कोई भी एटम आपके पास, अगर वो सोडियम है तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, फॉर द केस ऑफ कॉपर वो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके,
तो ये Q की वैल्यू 1 2 3 हो सकती है, राइट। n is the order of Na for microscopic sample. N is very large number. Okay, n is very large number. किसी बॉक्स के अंदर नंबर ऑफ एटम बहुत ज्यादा होते हैं. It will be the order of comparable with the Avogadro number. And the charge वो कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है हमें पता है. मोस्टली मेटल्स के अंदर या वो 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है या 2 करता है या मैक्सिमम कोई एटम 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है. तो Q की वैल्यू 1 2 3 हो सकती है. वो बहुत बड़ा नंबर नहीं होगी. Where Q is typically 1 2 3 n. Okay, right. If electron were bosons, they all are settled in the ground state. Okay, 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 right. इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताएं कितने होंगे? सर ये डिस्ट्रीब्यूशन दोबारा बताइएगा जरा, आवाज आपकी कट गई थी. अच्छा, अब इस बॉक्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन एटम्स कितने? कोई जनरलाइज नंबर बता दें, इसमें कितने एटम्स होंगे? ये कोई मेटालिक बॉक्स मैंने ले लिया या सॉलिड का बॉक्स ले लिया, ये क्यूबिकल फॉर्म में है. इसके अंदर कितने एटम? n एटम्स. अच्छा, कितने n एटम्स हैं? तो हर एटम कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है? 1 और 2. 1 और 2 और 3. ओके, बहुत स्मॉल. n जो नंबर है वो बहुत बड़ा होगा. ठीक है ना, n जो नंबर है वो बहुत बड़ा होगा. राइट, नंबर ऑफ एटम्स बहुत ज्यादा होते हैं, बट जो एक एटम जो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है वो 1 और 2 और 3 होगा. तो Q की वैल्यू 1 2 3 हो सकती है. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? Q मल्टीप्लाई बाय n. ऐसे ही, यस सर. राइट, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक, अगर वो कहता है इलेक्ट्रॉन्स की बजाय अगर बोसॉन्स होते और आपका सिस्टम बिल्कुल लो टेम्परेचर पे पड़ा होता, तो वो किस स्टेट में होते? वो सारे सारे ग्राउंड स्टेट में होते. यस सर. राइट, तो ग्राउंड स्टेट में kx की वैल्यू, जो आपके पास k की वैल्यू है, kx हमें पता है, kx हमने लिखा है, kx इज इक्वल टू nx पाई ओवर lx. राइट, ky ny पाई ओवर ly. राइट, एंड सिमिलरली kz की वैल्यू. ठीक है, ग्राउंड स्टेट अगर आपके वेव फंक्शन देखें, ग्राउंड स्टेट में nx की वैल्यू क्या होगी? ग्राउंड स्टेट में जी बताएं, ग्राउंड स्टेट में nx की वैल्यू क्या होगी? 1. 1. ny की वैल्यू क्या होगी? 1. nz की वैल्यू क्या होगी? सर जी उसकी भी 1 ही होगी. 1. ये ग्राउंड स्टेट है सिस्टम की. ठीक है, वो ग्राउंड स्टेट कैसे आई है वो आपने ऊपर सिस्टम की स्टेट लिखी हुई है. ठीक है, कौन कौन सी स्टेट्स, स्टेशनरी स्टेट्स एग्जिस्ट कर सकती हैं हमारी. दीज आर द स्टेशनरी स्टेट्स ऑफ योर सिस्टम. ओके, स्टेशनरी स्टेट्स हैं आपके सिस्टम्स की. nx ny और nz is equal to 1 1 1. that is a ground state of your system. राइट, यानी यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा. ये कोई स्टेट है 3 डिमेंशन में. तो अगर आपका सिस्टम बोसॉन्स है, तो ये बोसॉन्स बिल्कुल लो टेम्परेचर पे है, तो सारे बोसॉन्स ग्राउंड स्टेट में आ सकते हैं. यस सर, आ सकते हैं सारे के सारे एक जगह पे. सारे के सारे आ सकते हैं. बोसॉन्स के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है कि वो दे हैव टू फॉलो द पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. ठीक है, उनका वेव फंक्शन सिमेट्रिक है, ओवरऑल वेव फंक्शन सिमेट्रिक है. तो इससे क्या मुराद है, वो सारे के सारे एक स्टेट में आ सकते हैं. आया कि इलेक्ट्रॉन के केस में ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल, आपका सिस्टम लो टेम्परेचर में पड़ा है, यानी 0 केल्विन के ऊपर. इमेजिन दैट योर फर्मियंस एंड दैट इज ऑलमोस्ट एट 0 केल्विन. क्या तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में आ सकते हैं? नो सर, वो स्पेसिफाइड जगहों पे चले जाएंगे, लेकिन
जो बोसोन का जो केस होता है ना, वो एक जो सिंगल लेवल होता है ना, उसमें सारे के सारे आ जाते हैं, लेकिन वो जो सिंगल इलेक्ट्रॉन होते स्टेट हैं ना, वो नहीं आएंगे। डेफिनेटली मुराद स्टेट, ओके, जिसे हमने साई लिखा है। तो इलेक्ट्रॉन को अगर हम जितना मर्जी उस सिस्टम को आप कूल डाउन कर लें, तो वो 111 स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? ग्राउंड स्टेट में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 सर। 2। ठीक है, अप स्पिन और डाउन स्पिन, ओके। सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, 2 आ सकते हैं, मगर उनकी स्पिन शुड बी ऑपोजिट, ओके, राइट। तो हमारे पास, हमें ये पता चला 111 स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसके बाद एक्साइटेड स्टेट होगी 112 या 121 या 211, ओके, दीज आर द एक्साइटेड स्टेट्स, ओके। इसमें 2 आ सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट एक्साइटेड स्टेट्स में ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरह जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स के केस में आपके पास सिस्टम इस तरह बिहेव करता है। एवरी स्टेट हैव अ डिफरेंट एनर्जी, और जिनकी एनर्जी सेम है उसको हम कहते हैं डबली स्टेट्स, होते हैं। एवरी स्टेट्स हैव अ डिफरेंट एनर्जी, so you can fill it in this way, right? बात समझ रहे हैं? क्लियर यहां तक? यस सर। ओके, कहते हैं इमेजिन करें आप तो अगर आप के स्पेस में, ठीक है, के एक्स, के वाई और जी, के स्पेस में आप, ओके, स्पेस में आपके पास ये एनर्जी आपको पता है, दैट विल बी इक्वल टू एच कट स्क्वायर over 2m k square, and k square can be written as square is this equation for our case can be written as in 3 dimension kx square plus ky square plus kz square, ऐसे ही है। अब हम एनर्जी स्टेट्स बनाने लगे हैं, ठीक है, ऐसे ही है। जी, यहां तक क्लियर? यस सर, क्लियर। क्वेश्चन किस चीज की है? सर जी ये है, ये फेयर की। ठीक है, और उसका रेडियस है सपोज के एफ। के स्पेस में तो रेडियस डेफिनेट बी रिटन एज के एफ। राइट? जी, राइट। यस सर। अब हमने स्टेट्स बनाने लगे हैं इसके अंदर। देखें, अगर आप गौर से देखें, स्टेट्स क्या हो सकती हैं? 111 हो सकती है, 112 हो सकती है, ठीक, 121 हो सकती है, राइट? इस तरह की स्टेट्स हो सकती है ना इसके अंदर। तो दे आर फर्मियंस, डेफिनेटली दे विल ऑक्यूपाई डिफरेंट स्टेट्स। जी, मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, क्या इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस सिस्टम के अंदर के की तमाम वैल्यूज रखेंगे या क्वांटाइज्ड रखेंगे? सर क्वांटाइज्ड रखेंगे, स्पेसिफिक मतलब के जो डिस्क्रीट होती हैं, जैसे 1 2 3 4 ऐसे, 1.5 1.1 ऐसे।
जी बिल्कुल, ये वैल्यूज रखेंगे, तमाम वैल्यूज नहीं रखेंगे। अच्छा, ये डिस्क्रीट वैल्यूज हैं, इस यानी कि इस स्फीयर के अंदर तमाम अलाउड वैल्यूज नहीं है। के की ये वैल्यूज अलाउड हो सकती है, के की ये वैल्यूज अलाउड हो सकती है, के की कोई वैल्यू ये अलाउड हो सकती है, ये अलाउड के दरमियान ये वैल्यूज, इसके दरमियान गैप होगा, ठीक है, क्योंकि ये n इज क्वांटाइज्ड। राइट, ओके, राइट। तो ये जो एनर्जी की वैल्यूज हैं आपके पास फर्मियंस के केस में, तमाम इलेक्ट्रॉन सेम एनर्जी पे होंगे या डिफरेंट एनर्जी पे होंगे? अगर रूम टेम्परेचर पे आपका कुछ सॉलिड मटेरियल है, रूम टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड मटेरियल है, ओके, वो मेटल कोई पड़ी रूम टेम्परेचर पे, कॉपर कर लें या एल्यूमिनियम कर लें, रूम टेम्परेचर पे पड़ी, उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी सेम होगी या डिफरेंट होगी? यस सर, सेम होगी सर। जी सेम ही होगी, आइसोलेटेड टाइप बन जाएगा। उनकी एनर्जी डिफरेंट होगी बेटा। अगर आप इसको प्लॉट करें एनर्जी, ओके, इसकी अगर हम एनर्जी कर प्लॉट करके, कुछ इलेक्ट्रॉन पहली स्टेट में आएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ग्राउंड स्टेट पे? 2। फर्स्ट एक्साइटिंग स्टेट में कितने आ सकते हैं? 6। ना, वो डीजनरेट होंगे, पर एक स्टेट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है, वो स्टेट डीजनरेट स्टेट हो सकती है, राइट। यस इसके सर। बाद एक्साइटिंग स्टेट में, ठीक है, ऐसे ही है ना, अगर आप उसे फिल करना शुरू करेंगे। जी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अगर ये डिफरेंट स्टेट्स हैं, कुछ एक्साइटेड हैं, कुछ ग्राउंड स्टेट है, कुछ उससे भी ज्यादा एक्साइटेड है, तो ये मैं रूम टेम्परेचर पे फील कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉन फर्मियंस को, तो इनकी एनर्जी सेम कैसे हो सकती है? इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली दे आर एट डिफरेंट एनर्जी, इलेक्ट्रॉन विल पोजेस डिफरेंट एनर्जी, यस सर। ठीक है। ग्राउंड स्टेट की एनर्जी बहुत कम होगी और एक्साइटेड स्टेट में सपोज 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ओके, फॉर एग्जांपल, ओके, इसमें वेरी डीजेनरेट सिस्टम भी है, और इनकी एनर्जी आपके पास 1000 केल्विन होगी। एक्साइटेड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो मोर फर्मी लेवल के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसकी एनर्जी क्या होगी? उस एनर्जी के जो टेम्परेचर है, आप फर्मी टेम्परेचर भी कैलकुलेट करें, फर्मी वेलोसिटी भी, दैट्स वेरी हाई नंबर, और ये एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। उसका टेम्परेचर में है 10⁵ केल्विन, ऑलमोस्ट 10⁵ की रेंज में होता है। तो अगर ये टेम्परेचर है तो इसकी एनर्जी भी बहुत ज्यादा होगी उस लेवल की, राइट। तो मैं जब ओवरऑल इसको ऐड करता हूँ, एवरेज लेता हूँ, तो वो 300 केल्विन आता है, ठीक है, 300 केल्विन टेम्परेचर आपके सिस्टम का, अगर मैं एनर्जी को कन्वर्टेड इनटू टेम्परेचर। यस सर। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन असल में डिफरेंट एनर्जी पोजेस करते हैं। जो फर्मी लेवल के पास इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, और फर्मी लेवल का जो टेम्परेचर है ऑलमोस्ट 10 की पावर, यानी 10⁵ यस सर। ओके, 50,000 केल्विन होता है उस फर्मी लेवल का टेम्परेचर। बट जब एवरेज करते हैं आप तमाम लेवल की एनर्जी को, वो 300 केल्विन, राइट। तो ये इस तरह बोसॉन्स के केस में वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होते हैं एट लो टेम्परेचर, बट एट लो टेम्परेचर इट विल बी एट डिफरेंट लेवल। अब इस सिस्टम में कितनी स्टेट्स होंगी? इस पूरे स्फेयर के अंदर जारी बात है कि क्वांटाइज्ड स्टेट्स हैं, इस पूरे स्फेयर के अंदर कितनी स्टेट्स एग्जिस्ट कर सकती हैं, कितनी स्टेट्स एग्जिस्ट करती, मुझे वो कैलकुलेट करना, ठीक है। सबसे पहली बात, एक स्टेट कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है? एक स्टेट कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है? के एक्स, के वाई एंड के जी बाय एल एक्स, एल वाई
in LZ, that will be the volume of one state. ओके, तो एक स्टेट इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। सर जी टाइम काफी हो गया, क्विज भी होना है और हमारी नेक्स्ट क्लास। ओके राइट स्टूडेंट, मैं चलिए आपको क्विज भेज रहा हूँ, बाकी हम इसको अभी कंटिन्यू करेंगे। ओके तो सर 12 बजे हमारी क्लास है नेक्स्ट, तो 5 मिनट में क्विज हो जाएगा। 5-6 मिनट में हो जाएगा, देखिए। ओके स्टूडेंट, मैंने क्विज आपको मेल कर दी है। अभी काइंडली आपने सिर्फ आंसर मुझे भेजने, एक